Okay, so welcome to another session of CSS where we are going to learn about what are all selectors available in CSS and how we can start with the embedded CSS. Okay, we just saw how to apply the CSS code directly inside the HTML page on the HTML element by using the inline CSS. Okay, now we are going to learn how to apply embedded CSS or internal CSS and why it requires. Okay. So if you go to the HTML page, here you can see we have mixed the CSS code along with the HTML code. Okay, if you see the line number 7, here you can see some code for HTML and some code for CSS. Okay, so we have just mixed the both codes together in order to apply the color combination to the H3 heading. So this is how we have implemented. But now let's suppose I have one more heading here. Okay, H3, and this is, let's start something. CSS is cascading style sheet. Okay, equal to cascading style sheet. Okay, now if you see here, we have basically three different headings. Okay, what happened? Let me save this. Okay, we have basically three different headings. Now I wanted to apply the same CSS which we have added on this line number 1. तो सेम CSS मुझे क्या करना है, इस लाइन को भी ऐड करना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ये पूरा कोड उठाना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, फिर H3 में आके यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट. So इस तरह से we can just apply the same CSS to one more heading. Got it? अभी मान लो कि मेरे HTML पेज में ऐसे 10-12 और हेडिंग है. आई हैव 10 to 15 more headings and I want to apply the same CSS to them as well. तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर ऐसे हमें कॉपी करना पड़ेगा. ओके, मान लो जो H2 है, H2 उसको मुझे CSS नहीं लगाना है और जो H3 टैग है उसको मुझे CSS लगाना है. ओके, ऐसा कुछ अपना कोड है. गॉट इट? So we have two different type of tags inside the web page. H2 को CSS नहीं लगाना है और H3 को CSS लगाना है. H3 को क्या CSS लगाना है? कलर रेड टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, इस तरीके से. There is one additional tag somewhere. This one, this need to be closed. Okay, so अपने पास देखो इसमें क्या है, एक H3 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H2 है, ये H3 है. ओके, तो जहां जहां पे H3 मैं लिखूंगा वहां पे मुझे कलर रेड करना है और अंडरलाइन करना है. जहाँ पे मैं H2 लिखूंगा उसको कुछ नहीं करना है. ओके, तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि अपने वेब पेज में बहुत सारे H3 टैग है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे है, लेकिन है बहुत सारे टैग्स अपने डाले हुए हैं. और अपने को ये भी पता है कि H2 भी बहुत सारे हैं. तो जहाँ पे H2 आएगा उसको कलर नहीं लगना चाहिए, जहाँ पे H3 आएगा उसको कलर लगना चाहिए. तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में आपको ये जो कोड है CSS का जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, ये कोड हमें बार बार H3 पे लगाना पड़ रहा है. ओके, लाइन नंबर 7 पे भी लगाया, लाइन नंबर 9 पे भी लगाया, देन लाइन नंबर 11 पे भी लगाया. अगेन पूरे वेब पेज में हमें ढूंढना है कि भाई और H3 टैग किधर है. जहाँ पे भी रहेगा वहां पे हमें क्या करना है, CSS लगाना है. सो दैट इज द प्रॉब्लम. It will not help you to use the common code, right? In this case, you are just repeating the same code again and again. I would say this is not the right way to write CSS. Why? Because you are repeating the same code again and again multiple times. Okay.
if you know the dry principle, dry, okay, there is one principle, dry. Dry means do not repeat. Okay. Okay. So don't repeat yourself. Dry means don't repeat yourself. Okay. जो भी आप कोड लिखते हो, सेम कोड आप बार बार मत लिखो. Try to make it centralized. Try to make it common between your two different resources, multiple resources. Okay. Same thing यहाँ पे हम try कर रहे हैं. How to apply dry principle here while writing the code. Don't repeat the same code again and again. So how I can optimize this code, how I can improve the code, this code. Okay, how to remove the redundancy, this redundant जो code है वो कैसे remove करना है. So for that purpose you can go with the embedded CSS. Okay, embedded CSS यानी क्या होता है, you can apply the CSS from head section to the body section. हेड में से आप बॉडी को CSS अप्लाई कर सकते हो. Okay, and it will help you to segregate the HTML code and CSS code. Okay, you can HTML का कोड आप बॉडी सेक्शन में लिखो, CSS का कोड आप हेड सेक्शन में लिखो. इससे थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा कि वही पूरा जितना भी CSS लिखा है पूरे पेज के लिए वो एक जगह पे है, लाइन नंबर 6 ऑनवर्ड्स. और जो भी HTML का कोड है वो एक ही जगह पे है, लाइन नंबर 9 ऑनवर्ड्स. ओके. तो अगर मुझे जहां जहां पे H3 हेडिंग है उसको ये CSS लगाना है, कलर रेड वाला. ओके, जहां जहां पे H2 है उसी को कुछ नहीं करना है. इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द इनलाइन टैग्स. ओके, जहां जहां पे इनलाइन CSS आपने लगाई है उसको रिमूव कर दो. अभी आपको देखने में भी अच्छा लगेगा कोड कि भाई यस, सो आई दिस इज माय HTML कोड. ठीक है, जो भी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है ये पूरा HTML कोड, प्लेन HTML कोड. देयर इज नथिंग, कुछ नहीं मिक्स किया हमने इसमें. HTML में हमने जावास्क्रिप्ट मिक्स नहीं किया, jQuery मिक्स नहीं किया, CSS मिक्स नहीं किया, नथिंग. इट इज प्योर HTML कोड. एंड नाउ इफ यू रिफ्रेश दिस पेज, यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक ही दिखने वाला है बिकॉज वी हैव रिमूव्ड द CSS. एंड नाउ दिस टाइम आई वांट टू ऐड द CSS टू H3 टैग. ओके, जहां जहां पे H3 टैग है उसका कलर रेड होना चाहिए, उसको अंडरलाइन आनी चाहिए. So for this, I will require HTML element selector. Okay, element selector H3 this type. Okay, so ये H3 selector जो हम डाल रहे हैं, so this is your selector. Now notice the syntax again. Okay, this is your syntax. Syntax देखो क्या बोल रहे हैं अपन, selector. Why we require selector? It will help me to select HTML element from the web page where you want to apply the CSS. Okay, कौन से HTML एलिमेंट पे आपको CSS अप्लाई करनी है, दैट यू कैन सिलेक्ट बाय यूजिंग द सिलेक्टर. ओके, सो आई हैव सिलेक्टेड H3. तो H3 के अंदर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप आपका CSS कोड लिख सकते हो, जैसे कि प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, कलर ब्लू, कलर रेड. ओके, वन मोर प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज 12, हमने लगाया टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन. ओके, नाउ यू नोटिस this is the CSS code we have added in the head section. This is the HTML code we have added in the body section. और यहाँ पे H3 is the selector. By using the selector, I have applied these two CSS properties on line number 13, 15 and 17. कैसे? क्योंकि ये तीन लाइन पे मेरा जो HTML का टैग है उसका नाम है H3. और मैंने यहाँ पे वही बोला है कंपाइलर को कि भाई जहाँ पे भी H3 टैग है उसको ये दो CSS लगाना है. तो वी आर नॉट रिपीटिंग द CSS कोड अगेन एंड अगेन. ओके, अगर आपने नोटिस किया द CSS कोड रिपीट नहीं है, बट इट इज अ स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग CSS कोड. इट विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट. ओके, यहाँ पे रेड हो गया, अंडरलाइन हो गया, रेड हो गया, अंडरलाइन हो गया, रेड हो गया, अंडरलाइन हो गया. लेकिन यहाँ पे CSS का कोड देखोगे, HTML का कोड इज डिफरेंट, CSS एट डिफरेंट लेवल. बट उसका सिलेक्टर की वजह से हमने क्या किया,
बराबर CSS उसको लगा दिया। ओके, H3 देखो, इसको लगा आणि इसको लगा, बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्टर। गॉट इट? सो वी कैन कॉल इट एज एलिमेंट सिलेक्टर, है क्या यहाँ पे? या टाइप सिलेक्टर जो है उसी का नाम एलिमेंट सिलेक्टर है, मैं इसका नाम बदल देता हूँ। ओके, सो दिस इज योर एलिमेंट सिलेक्टर। नाउ मान लो मुझे क्या करना है, फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट चेंज करना है मुझे कैलिब्री। ओके, लेकिन फॉन्ट चेंज करने के लिए मुझे पूरा जितना भी अपना वेब पेज है उसमें जितने भी टैग्स है सारे के सारे टैग्स का फॉन्ट चेंज करना है। सो फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज यूनिवर्सल सिलेक्टर। ओके, जैसे कि मान लो मुझे अभी H3 है, उसका फॉन्ट कैलिब्री चाहिए। H2 है, उसका फॉन्ट कैलिब्री चाहिए। पैराग्राफ टैग है, उसका फॉन्ट कैलिब्री चाहिए। इट मीन्स मुझे जितने भी HTML के एलिमेंट्स है, जहां जहां पे भी मैं कंटेंट डालूंगा वहां पे मुझे क्या चाहिए, फॉन्ट कैलिब्री चाहिए। तो उसके लिए हम इतने सारे सिलेक्टर्स नहीं लिख सकते ना, कि भाई H3, H2, स्पैन, डिव, पी टैग, एंकर टैग, इमेज टैग, फॉन्ट टैग। ओके, तो इतने सारे HTML टैग तो नहीं लिख सकते एज अ सिलेक्टर। तो उसके लिए एक नया सिलेक्टर इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, स्टार। स्टार यानी यूनिवर्सल सिलेक्टर रहता है। ओके, अगर आप यहाँ पे स्टार लिखोगे और लिखोगे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली कैलिब्री। ओके, ऐसा लिखोगे तो ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा। आई थिंक इट इज बाय डिफॉल्ट कैलिब्री। ये कैलिब्री। ओके, so you can see here, so this asterisk means everything। जितने भी HTML के कंटेंट्स है, टैग्स है, जितने भी अवेलेबल है बॉडी सेक्शन के अंदर, उन सबका फॉन्ट कैलिब्री कर दो। दिख रहा है, ये चेंज हो गया फॉन्ट। आप बहुत सारे फॉन्ट्स लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि ओनली कैलिब्री। यू कैन जस्ट चेंज इट टू एनी फॉन्ट हियर, वट एवर यू वांट। चलो ये लगाते हैं। ओके, कर्सिव करके। अभी ये फॉन्ट आपको समझ में भी आएगा। यस, वी हैव चेंज द फॉन्ट, दैट्स व्हाई। ओके, रिफ्रेश करो। अभी यहाँ पे क्या हो गया, देखो, वी हैव चेंज द फॉन्ट ऑफ आवर HTML पेज। हाउ वी चेंज दैट? बाय यूजिंग द यूनिवर्सल सिलेक्टर। व्हाई आई अप्लाई यूनिवर्सल सिलेक्टर? बिकॉज मुझे जितने भी कंटेंट है उन सबका करना था। लेकिन मान लो मैंने ये टैग निकाल के इसके अंदर डाल दिया। ओके, और इसको निकाल दिया, अभी क्या होगा, जितने भी H3 टैग है, H3 करके जो जितने भी टैग्स है उनका ही फॉन्ट चेंज होगा। लेकिन जो H2 टैग है उनका नहीं होगा। देखो, देखो H2 का फॉन्ट चेंज हुआ नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, लेकिन इसका हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ। ओके, सो इससे क्या हो जाएगा कि आपको हर एक टैग के लिए ये लाइन लिखना पड़ेगा। तो दैट इज नॉट अ गुड वे टू डू, राइट? आपको हर HTML के हर एक एलिमेंट के लिए लगाना है, तो गो विद द यूनिवर्सल सिलेक्ट, कंट्रोल जेड। ओके, ये वाला यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करो। उसको बोलते हैं हम एस्टेरिक्स। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, और यूनिवर्सल सिलेक्टर। और ये सिलेक्टर अगर आप लगाओगे तो इसके अंदर जो भी लिखोगे वो जितने भी कंटेंट्स अवेलेबल है वेब पेज में उन सबको लगेगा। ओके, so let's refresh again. So you can see that because of that universal selector, it got applied to H2 as well as H3. Okay, so this is your universal selector. Next one है descendant selector. Descendant यानी पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और उसका चाइल्ड और उसका चाइल्ड, वैसे हम लगा सकते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड एज डिसेंडेंट सिलेक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी मान लो अपने पास एक डिवीजन है। ओके, डिव, इस डिव के अंदर एक स्पैन है। ओके, एक डिव है, उसका नाम है दिस इज स्पैन कंटेंट्स। ओके, स्पैन टेक्स्ट ले लो, ये स्पैन के अंदर वाले टेक्स्ट है। ओके,
यहाँ पे और मैं लिखता हूँ दिस इज ड्यू कंटेंट, ड्यू टेक्स्ट। ये ड्यू के अंदर है, ये स्पैन के अंदर है। ओके। और आपको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, जितने भी एलिमेंट्स है उसको थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ, आपको भी समझ में आएगा। बॉर्डर सॉलिड थिन ग्रे। ओके, रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो अपने पास क्या है, एक डिवीजन है, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है पूरा, ये एक डिवीजन है। उसके बाद ये बॉडी को नहीं देना था, एक मिनट, ड्यू को देना है, थॉमस पैन को देना है बस। ओके, थोड़ा सा उसमें पैडिंग दे देते, समझ में आएगा। ये सब आपको मैं बताऊंगा, व्हाट इज पैडिंग, व्हाई वी रिक्वायर पैडिंग। ओके, दिस इज ड्यू, ड्यू को पैडिंग नहीं आई शायद, चेक व्हाई। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ओके, ये जो अभी मैंने सी से सीखा ना, वो आपके लिए नहीं है। ओके, इट इज जस्ट फॉर क्रिएटिंग द एग्जाम्पल सिनेरियो। ओके, आपको समझने के लिए अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मैं जो भी ड्यू लिखूंगा, स्पैन लिखूंगा, जो भी क्लास लिखूंगा, जैसे मैं पीवी लिखने वाला हूँ अभी। ओके, पी मतलब पैराग्राफ, पीवी लिख दिया मैंने, ड्यू के अंदर एक पी टैग लिख दिया मैंने। ओके, दिस इज पैराग्राफ। सो जो भी मैं टैग्स डालने वाला हूँ ना, वो आपको बॉक्स के फॉर्मेट में दिखेंगे HTML वेब पेज में, इसलिए मैंने वो CSS डाला। सो दिस इज जस्ट फॉर क्रिएटिंग एन एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। Don't worry about this CSS even though you are not aware about these many properties. Okay, just collapse it and forget it. Just focus on this section here. यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बस समझना है कि एक डिवीजन है, एक स्पैन है, एक पी टैग है, ये कोड में है, लेकिन आउटपुट में भी आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये डिवीजन है, उसके नीचे एक बड़ा बड़ा वाला बॉक्स है, वो स्पैन है, और एक पैराग्राफ है। गॉट इट। अभी मुझे ये वाला CSS यूज करना है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। और एक क्या करता हूँ मैं, इस ड्यू के बाजू में और एक पी टैग डाल देता हूँ यहाँ पे, दिस इज आउटर पैराग्राफ, दिस इज इनर पैराग्राफ। ओके, और इसके बाद में और एक स्पैन भी डाल देता हूँ, दिस इज आउटर स्पैन एंड दिस इज इनर स्पैन। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। ओके, ये एक डिवीजन है, उसके अंदर एक स्पैन है, उसके स्पैन के बाजू में एक पैराग्राफ है। ओके, ये अनदर, ये ड्यू खत्म, ये देखो, ये पूरा ड्यू खत्म। मैं का एक काम करता हूँ छोटा सा, ड्यू का कलर, जो बॉर्डर कलर है उसको रेड करता हूँ, समझ में आएगा कि ये अलग बॉक्स है, वो अलग बॉक्स है। ओके, अच्छा, देखो ये जो डिवीजन है उसका बॉर्डर मैंने रेडी किया, रेड बॉर्डर के अंदर जो भी है वो ड्यू के अंदर है, रेड बॉर्डर के बाहर जो भी है वो ड्यू के बाहर है, बस इतना ध्यान में रखना है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट these two type of selectors. This is the example we have just created. अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी स्पैन है, उसका कलर रेड करो। कलर रेड क्यों कर रहा हूँ मैं, जस्ट मेक श्योर कि हमने जो CSS लगाया है वो अप्लाई सही से हुई है क्या टारगेट एलिमेंट को। दैट इज वाई वी आर ओनली ट्राइंग कलर रेड, कलर ब्लू, ऐसा। सो इट विल इंश्योर, मेक श्योर कि हमने जो
कोड किया है वो बराबर उसी एलिमेंट को जाके अप्लाई हो रहा है या नहीं, दैट्स वाई। ओके, मुझे क्या करना है, स्पैन जो एलिमेंट है उसका कलर रेड करना। तो क्या रहेगा सिलेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे हम स्पैन। ओके, और उसका कलर रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, रिफ्रेश करो, क्या हो गया, देखो यहाँ पे रेड हो गया, यहाँ पे रेड हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई वॉन्टेड टू अप्लाई दिस CSS only for span element which is available inside the div, not outside the div। ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये जो रेड कलर का div बॉक्स है, इसके बाहर वाले जो स्पैन टेक्स्ट है उसको नहीं अप्लाई करना है, उसके अंदर वाला जो स्पैन है उसी के अंदर, उसी को अप्लाई करना है। तो आप CSS क्या लिखोगे फिर, यहाँ पे ऐसा लिखना है, div टैग के अंदर जो स्पैन है उसका ही कलर रेड करो। ओके, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। div के अंदर, ये जो ग्रेटर देन का साइन है ना, ये डिनोट करता है कि इसके अंदर वाला स्पैन। अभी आप रिफ्रेश करो, नाउ नोटिस द आउटपुट से, ये डिवीजन के अंदर जो स्पैन है उसी को रेड करना है, ना कि इस आउटर वाले को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चाइल्ड सिलेक्टर। ओके, ये जो सिलेक्टर मैंने लिखा है यहाँ पे, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड चाइल्ड, उसकी वजह से। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पैराग्राफ टैग है, इस पैराग्राफ टैग के अंदर भी एक स्पैन टैग है, मान लो दिस इज स्पैन इनसाइड पैराग्राफ। ओके, देखो ड्यू के अंदर एक स्पैन है, उसके अंदर, उसके बाजू में एक पैराग्राफ है, उसके अंदर एक स्पैन है, राइट। अभी ये जो स्पैन है उसका कलर भी मुझे रेडी करना है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, ड्यू के अंदर जहां पे भी स्पैन है, आइदर वो इमीडिएट चाइल्ड है या फिर ग्रैंड चाइल्ड है, दिस इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ डिवीजन, राइट। तो दिस डिवीजन, उसके बाजू में एक पहला स्पैन, उसके अंदर एक पैराग्राफ, उसके अंदर एक दूसरा स्पैन। तो दिस स्पैन इज अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ योर डिव। ओके, जहां जहाँ पे स्पैन है उसका बॉर्डर कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ, आपके समझ में आएगा। ओके, जहाँ पे भी स्पैन है उसका बॉर्डर कलर ब्लू कर दो, समझ में आने के लिए। ओके, दिख रहा है, जहां जहाँ पे ब्लू कलर आपको दिख रहा है ना, वो स्पैन एलिमेंट। ओके, सो आपने अगर नोटिस किया, डिव है रेड कलर में, उसके अंदर एक स्पैन है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, उसके बाजू में, नॉट इनसाइड, ओके, उसके बाजू में एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के अंदर एक स्पैन है। अभी मुझे CSS क्या लिखना है कि डिवीजन के अंदर जहां जहां पे भी स्पैन है, आइदर इट इज अ ग्रैंड चाइल्ड और इमीडिएट चाइल्ड, जस्ट मेक इट रेड, ऐसा CSS लिखना है। तो यहाँ पे बस क्या करना है आपको, ये जो ग्रेटर देन का साइन है ना, ये हटा देना है। एज सुन एज यू रिमूव दिस साइन, it will apply this CSS to all span element which are available inside div, irrespective of whether it is immediate child और ग्रैंड चाइल्ड। ओके, देखो यहाँ पे भी CSS अप्लाई हो गया, यहाँ पे भी CSS। ओके, और अगर मुझे ऐसा करना है कि जहाँ पे भी स्पैन है वहां पे वो CSS लगना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, div निकाल दूंगा, बस स्पैन रखूंगा। अभी देखो, ओके, गॉट इट। सो यू कैन कंट्रोल द सिलेक्टर्स। ओके, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। आपको अगर सिलेक्टर्स को कैसे यूज करना है ये पता है, so you will be become very good front end developer। Selectors is very important because it will decide where to apply the CSS, selectors will decide that। Okay, only selector know where we need to apply these two lines, CSS lines। Okay, so that is very important। abhi let's take another example। I want to apply this CSS only the span tag which is not immediate child of div। div का जो immediate child है उसको नहीं लगाना है,
उसका जो ग्रैंड चाइल्ड है उसको, मतलब जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया ना उसी को लगना चाहिए, इसको भी नहीं लगना चाहिए और इसको भी नहीं लगना चाहिए। तो अभी क्या करोगे? तो उसके लिए अभी आपको करना है ग्रैंड चाइल्ड। ओके, ये वाला डिसेंडेंट करके, मतलब भाई डिवीजन के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर जो स्पैन टैग है उसी को लगाओ। ये इससे क्या हो जाएगा, वो इसको भी नहीं लगेगा और इसको भी नहीं लगेगा, ओनली इसको लगने वाला है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उसको स्पेसिफिकली। डिवीजन के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर जो स्पैन टैग है उसको रिफ्रेश करो। ठीक, सो इट इज योर ग्रैंड चाइल्ड सिलेक्टर। गॉट इट। नाउ आपको क्या करना है, ऐसा स्पैन टैग को लगाना है जो डिवीजन के बाहर है। ओके, डिवीजन के अंदर वाला नहीं, उसके बाहर वाला। अगर डिवीजन के अंदर स्पैन है उसको नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो टिल्ड सिंबल। टिल्ड सिंबल इज फॉर सिबलिंग, जो डिवीजन के बाहर है उसी को लगना चाहिए। देखो, जो डिवीजन के बाहर है उसी को आपने स्पैन टैग लगाया, ना कि इस स्पैन ना इस स्पैन। ओके, डिवीजन के बाहर। अगर मैंने ये निकाल दिया ना डिवीजन और टिल्ड सिंबल, तो ये सबको लग जाएगा। बट आई वांट टू स्पेसिफिकली अप्लाई दिस वन ओनली, so you can use tilde symbol for that. Tilde is means sibling. Sibling means ड्यू का और स्पैन का पेरेंट एक ही है, so that is called as sibling. Okay, I hope you got the understanding of descendant and child selectors. Now next is class selector. It is fairly straightforward. क्लास सिलेक्टर मतलब ऐसा सिलेक्टर रहता है कि जहाँ पे भी आप मान लो आपने एक क्लास लिखा, क्लास का नाम दिया इटैलिक। ओके, इटैलिक करके क्लास लिखा आपने। ओके, क्लास है तो उसको ये पीरियड यूज करना है। ओके, ये जो डॉट है वो इट विल डिनोट दैट यू आर गोइंग टू यूज क्लास सेलेक्टर बिकॉज ऑफ दिस पीरियड सिंबल, डॉट सिंबल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे लिखो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ओके, जहां जहां पे भी आपको इटैलिक फॉन्ट लगाना है, डायरेक्ट ये क्लास उठाना है। बताओ अभी किसको लगाना है मुझे? मान लो मुझे अ, इस पैराग्राफ को लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, उस पैराग्राफ पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा क्लास इक्वल टू इटैलिक, दैट्स इट। जहाँ पे भी आपको इटैलिक चाहिए रहेगा फॉन्ट इफेक्ट, देन यू कैन जस्ट गो एंड अप्लाई दैट टास्क टेक्स्ट। यहाँ पे भी लगाना है ड्यू टेक्स्ट को, गो हियर। ओके, जस्ट अप्लाई। अभी क्या हो जाएगा, अगर मैंने ड्यू को लगा दिया ना, तो ड्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो उसको लग जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो सारे एलिमेंट्स हो, बट दिस। ओके, so this is how we can apply the span class selector to our वेब पेज। ओके, बस आपको क्या नोटिस करना है कि क्लास वहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे पीरियड होना चाहिए, डॉट सिंबल होना चाहिए। ओके, तभी जाके वो क्लास सिलेक्टर अप्लाई होगा। नेक्स्ट वन इज आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर यानी हैश वाला। हैश, उसका आईडी है मान लो माई पैरा। ओके, और उसका कलर मुझे करना है, कलर करना है दिस टाइम दिस वन, पता नहीं कौन सा। ओके, तो ये मुझे किसको लगाना है, इस पैराग्राफ को लगाना है। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द आईडी सिलेक्टर। कलर नहीं हुआ, माय पैरा इज द आईडी एंड वी नीड टू ऐड आईडी हियर, नॉट क्लास। ओके, और आईडी एक ही होता है, पूरे वेब पेज में एक ही आईडी होने वाला है। तो दैट्स वाई पी आईडी इक्वल टू माई पैरा। और आईडी सिलेक्टर यूज करना है दैट वी नीड टू नोटिफाई टू अवर ब्राउजर, so you can inform it by using the hash symbol. हैश मतलब आईडी। देखो आ गया, उसका कलर चेंज हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज आईडी सिलेक्टर। नाउ लास्ट सिलेक्टर इज दैट एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर व्हाई वी रिक्वायर, आई विल टेल यू। अभी मान लो आई हैव, let me comment this. Okay, we don't require this now. Okay, this is how you can comment. As soon as you comment you won't see that output in the window. Okay, अभी यहाँ पे एक इनपुट है टाइप टेक्स्ट।
ओके, अनदर इनपुट है टाइप पासवर्ड। आपको पता है अभी व्हाट इज इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड व्हाट इज इनपुट टाइप पासवर्ड, दिस यू ऑलरेडी नो इन द एचटीएमएल सिंबल। नाउ अभी यहाँ पे क्या करना है हमें कि जो भी इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है, ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, आपको समझेगा। दिस इज टेक्स्ट बॉक्स, और एक प्लेस होल्डर डालता हूँ, दिस इज योर पासवर्ड बॉक्स। ओके, ये आपको पता है, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज पासवर्ड बॉक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? यहाँ पे अगर कुछ डालोगे वो आपको दिखेगा, यहाँ पे कुछ डालोगे वो नहीं दिखेगा, बट बोथ आर फॉर द सेम पर्पस टू गेट द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ इनलाइन टेक्स्ट। अभी मुझे क्या करना है, जिसका भी ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका बॉर्डर रेड करना है, टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर रेड करना है, पासवर्ड का नहीं। तो इस केस में आपको कौन सा सिलेक्टर लगेगा? यहाँ पे देखो, इसका टैग का नाम क्या है? इनपुट है। इसका टैग का नाम क्या है? इनपुट है। मुझे क्लास भी नहीं लगाना है, ना कि ये किसी का चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है, डिवीजन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। तो इस केस में आपको लगेगा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। हाउ टू अप्लाई दैट? जस्ट गो हियर, बोलो यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर कैसे रहता है, देखो, इनपुट मतलब टैग का नेम। अगर मैंने ऐसा कर दिया ना, इनपुट इक्वल टू बॉर्डर कलर रेड, तो अगर मैंने कर दिया मान लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों इनपुट को बॉर्डर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ठीक से लगाना पड़ेगा, बॉर्डर सॉलिड थिन डिफ्यूज। देखो, इसको एक बॉर्डर आ गया रेड कलर का, लेकिन दोनों को आ गया, टेक्स्ट बॉक्स को भी आ गया और पासवर्ड बॉक्स को भी आ गया। आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस बॉर्डर ओनली फॉर द टेक्स्ट बॉक्स। इनपुट जो नाम है ये टैग का नाम हो गया। ओके, यहाँ पे भी इनपुट है, यहाँ पे भी इनपुट है, सो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग अप्लाइड टू द बोथ द बॉक्सेस। आई वांट टू स्पेसिफिकली अप्लाई इट टू पासवर्ड बॉक्स ओनली। तो इन दैट केस यू कैन यूज एट्रीब्यूट सिलेक्टर कि भाई ऐसा इनपुट टैग जिसका टाइप पासवर्ड है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स है, इस तरीके से। इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या देखेगा कि ऐसा इनपुट बॉक्स कि जिसका टाइप टेक्स्ट बॉक्स है, नॉट बॉक्स एक्चुअली, वॉट एवर इट इज। सो यहाँ पे जो भी वैल्यू जिसका टाइप नाम के एट्रीब्यूट में टेक्स्ट नाम का वैल्यू है, उसी को ये बॉर्डर लगाना है। इवन दो इसका टैग का नाम इनपुट है, लेकिन टाइप में तो पासवर्ड है ना, तो इसको मत लगाओ। ऐसा हम उसको बोल रहे हैं ब्राउजर को, और वो सुन भी रहा है अपनी, देखो। ओके, उसको क्या बोला हमने कि भाई आई वांट टू अप्लाई दिस सीएसएस टू ओनली दोज इनपुट टैग्स which are having type equal to text. So this is your attribute selector. It will help you to select an element with the help of attribute, unique attribute. Okay, okay, so I think you got the understanding about CSS, selectors, then syntax, the introduction about CSS, and we also saw the inline CSS, embedded CSS. Okay, we'll see the external CSS in next session. Let me stop the recording.